हाय गाइस, माय नेम इज़ मिलन डोलरिया। आई होप आप सभी का आज का स्टैटिस्टिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ओके, क्योंकि पूरा पेपर यदि देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही पूछे गए थे। हालांकि इस पर थोड़ा सा थियरी का वेटेज ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू लास्ट 5 ईयर पेपर, बट फिर भी जो भी जितने भी क्वेश्चन थे वो एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक नहीं था। और रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू सारे के सारे जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए हैं उसी में से ही थे। सेक्शन बी में भी थियरी ज़्यादा थी, बट सारी ही थियरी जो टेक्स्ट बुक के पीछे सेक्शन बी है वहीं से ही ली गई थी। ओवरऑल पेपर इजी था, बट थियरी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो। बट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम we are quickly starting the solution with MCQs. ओके, सो क्विकली जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें रीड करके हम फटाफट देखेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वहाँ पे कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था विच एवरेज इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक के पीछे का MCQ है, हमें भली बात ही पता है इसका आंसर है जियोमेट्रिक मीन। सेकेंड, what weight is assigned as expenditure to the price relative P1 by P0 of the item to obtain the formula of Pasche's index number। पाशे के इंडेक्स नंबर में जो हम वेटेज देखते हैं वो P0 Q1 लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what is the value of R if all the point plotted on scatter diagram lie on a single line only। एक ही लाइन पे सारे हो तो परफेक्ट लिनियर को रिलेशन है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो आंसर इज बी, 1 और -1। What is the value of rank correlation coefficient if sigma d square is equals to 0? So we know the formula of R, 1 minus 6 sigma d square divided by n square minus 1. So if we put sigma n d square is equals to 0, so we are getting the value of R is equals to 1. That means option C is correct. Okay, then question number 5, what is the value of y byx if the regression line y on x is 2x plus 3y minus 50 is equals to 0? Basically here byx, it is the slope of this straight line, and it is we can find out by using the formula minus a by b. That means minus of coefficient of x divided by coefficient of y, so it is minus 2 by 3. Okay, then next, if r is equals to 0.8, then how much part of the total variation in the independent variable can be explained by the regression model? So basically for that we need to find the capital R square, right? That is the square of small r. If we do the square of 0.8, it is 0.64. If you want to find out the percentage, then we need to multiply with 100, so it is 64%. Option B is correct. Then number 7, which component of the time series is impossible to predict, that is a random component? Option A. Then question number 8, which method of finding trend is best to eliminate the short term variations? For that we need to use the method of moving average, so option D is correct. What is the value of probability of A intersection A dash? A and A dash intersection में कुछ नहीं होता, null set होता है, so probability होती है 0, option B. Then number 10, if one number is randomly selected between 1 and 20, what is the probability that the number is multiple of 5? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि 1 और 20 के बीच में पूछा गया है, यानी 1 और 20 कंसिडर नहीं करने हैं। 1 और 20 कंसिडर ना करके उनके बीच वाले नंबर काउंट करें तो हमें कितने मिलते हैं? 18, राइट? एंड आउट ऑफ दैट मल्टीपल ऑफ 5, that is 5, 10, 15, so total 3 values are there, so 3 by 18, simplification is 1 by 6, option number B. Okay, then which variable of the following will be an illustration of discrete variable? That is again textbook question, birth year of a student, theoretical question. Okay, number 12, for which value of x the value of p of x of binomial distribution with the parameter n is equals to 4 and p is equals to 1 by 2 becomes maximum? Okay, here if we see the formula of p of x, then it is ncx p raised to x and q raised to n minus x. But in case of binomial distribution, p and q both are 1 1, right? So if we put the value in this formula, then we will get p of x
is equals to n, and that is given 4cx. Now p and q both are 1/2, so simplification gives us 1/2 raised to 4. So in case of all the value of x, 1/2 raised to 4 will become same. So we need to maximize this 4cx, and 4cx is maximum at x is equals to 2. That's why the answer is option B, 2. Okay, then number 13, the binomial distribution has mean 5, variance 10/7. What will be the type of this distribution? Okay, so here if you see that, so mean is np is equals to 5, and variance, that is npq, so 10/7. If I put the value of q, np 5 in the second equation, so 5q is equals to 10/7, and after simplification we can cut this 5 with 2, so q is equals to 2/7, and p is equals to 1/q, so we will get 5/7. Okay, now 5/7 is greater than 1/2, and we know that if p is greater than 1/2, the answer is negatively skewed, right? That is the property of binomial distribution. So answer is option B, negatively skewed. What is the total area under the normal curve among the following? So we know that total area is 1, so option C is correct. In normal distribution, usually which limit include 99% of the observation? ये जो क्वेश्चन बनता है वो प्रॉपर्टी के बेस पे बनता है. इसकी लास्ट प्रॉपर्टी में ये लिखा गया है म्यू प्लस और माइनस 2.575 सिग्मा. या वी कैन ऑल्सो गेट द आंसर फ्रॉम द टेबल ऑल्सो, बट प्रॉपर्टी में है तो ईजिली हमें वो याद रहेगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Then number 16, which of the following is appropriate value of quartile deviation? So that is the formula 2/3 sigma, but this is a standard normal variable, so it is 2/3 only. Option B is correct. 17, what is the modulus form of 0.3 neighborhood of 3? So A is 3 and delta is 0.3, right? So formula is modulus of x minus a less than delta. So need to put the value of a and delta, so we will get the option B, x minus 3 less than 0.3. So option B is correct. Then question number 18, what is the value of x tends to minus 2 limit 18? अब वहाँ पे कोई x है ही नहीं, तो 18 है वो एज इट इज़ आंसर ही रहेगा. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 18. नंबर 19, dy/dx पूछा जा रहा है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. तो सी एक्स का डिफ्रेंसिएशन c होता है, d का 0. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सी. देन क्वेश्चन नंबर 20, 3x² डिफ्रेंसिएशन पूछा गया है, तो 3x² में जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगी, डेट इज़ मल्टीप्लाई विथ 3, सो 3 × 2 6, एंड एक जो एक्सपोनेंट है वो हर बार हम डिफ्रेंसिएशन में कम करते हैं, सो आंसर इज CX, ऑप्शन सी. ओके, सो ये सारे के सारे जो MCQ थे वो इजी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले MCQ थे, जो हर बार हम क्लास में बता भी रहे थे कि ज़्यादातर चांसेस जो टेक्स्ट बुक के पीछे वहीं से ही होते हैं. ऑप्शन बी के भी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी टेक्स्ट बुक के पीछे से सेक्शन बी जो है वहाँ से पूछे गए हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज इम्प्लिसिट वेट. थियरिटिकल क्वेश्चन है ये. द वेट विच इज डिटरमाइंड एज पर द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट आइटम्स सिलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट वेट. ओके, देन नंबर 22, what will be the sign of R if the value of covariance is negative? यदि कोवेरियंस नेगेटिव है तो सेम साइन रहती है R, तो R भी होगा नेगेटिव. सो 22 आंसर इज नेगेटिव. देन 23, स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल. सो लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, जहाँ पे अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट है और u एरर वेरिएबल या डिस्टर्बेंस वेरिएबल लिखा जा सकता है. 24 में नोटेशन पूछा गया है साइक्लिक कॉम्पोनेंट का, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली CT से. फिर 25 में एक असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे कम जो प्रोबेबिलिटी है वो खुद 0 है. फिर ए और बी जो दोनों में कॉमन है वही होता है, इसलिए वो आता है. उससे बड़ा PA होता है, उससे बड़ा यूनियन, और दोनों का एडिशन यूनियन से भी बड़ा होता है. हालांकि वो प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हम थोड़ा क्विकली जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है तो ये ऑर्डर हमें पता हो उसी हिसाब से अभी हम छोड़ रहे हैं. क्योंकि ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो PA प्लस PB, उसमें से PA इंटरसेक्शन भी हटाया जाता है, यानी यूनियन का जो आंसर है वो PA प्लस PB से कम आता है. क्यों? क्योंकि उसमें से अभी इंटरसेक्शन और माइनस किया जाता है जो उसका फॉर्मूला है, इसलिए PA प्लस PB का आंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें A का पार्ट है, B का पार्ट है, और दोनों का कॉमन पार्ट है वो 2 बार कंसिडर होता है.
इसलिए पी ए प्लस पी बी सबसे ज़्यादा, फिर ए यूनियन बी, फिर पी ए, फिर इंटरसेक्शन और फिर 0। 26 डेफिनेशन पूछी गई थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो ये भी थियरिटिकल क्वेश्चन। अ रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज़ कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग ऑल द वैल्यू इन द सेट ऑफ रियल नंबर और इट्स सबसेट, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एग्जाम्पल यदि लिखना चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पे है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। 27 उसमें हमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उनके लिए कांस्टेंट की वैल्यू पूछे गए। 2 कांस्टेंट उसमें यूज़ होते हैं, एक है पाई जिसकी वैल्यू है 3.1416 एंड दूसरा है ई जिसकी वैल्यू है 2.7183। 28 में एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स की वैल्यू 2030 दी गई। एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स उसमें छोटा है वो Q1, बड़ा है वो Q3। मीन का फॉर्मूला है Q1 + Q3/2। सो बेसिकली वो यूज़ करने पे हमें मिल जाता है 25। 29 में एक मॉड्यूलस फॉर्म दिया गया था कुछ इस वे से, x - 10 लेस देन 1/10। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो a की है, यहाँ पे वो डेल्टा है और नेबरहुड फॉर्म में a डेल्टा की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो n रहेगा, a की जगह पे आप 10 रख दो, डेल्टा की जगह पे 1/10। सो ये आंसर इजीली मिल जाता है। ओके, नंबर 30 व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कौन से होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलने के चांसेस है। द पॉइंट वेयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर्स आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे सेक्शन बी हमारा और होता है एंड सेक्शन सी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें और टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए, यानी 7 अटैम्प्ट करने हैं। और हालांकि जिन्होंने 7 से ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं तो जिसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर होंगे वो 7 आपके गिने जाते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वाई इज़ द फिशर्स इंडेक्स नंबर कॉल्ड एन आइडियल नंबर। चैप्टर 1 में ये थियरेटिकल बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इसलिए सभी टीचर्स ये करवाते ही है। 4 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। वेरी फर्स्ट वन, फिशर्स इंडेक्स नंबर कंसिडर द क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ, मतलब बेस ईयर की भी काउंट करनी है और करंट ईयर की, मतलब चार इसमें इंक्लूड होते हैं P0, P1, Q1, Q0। इसलिए ये पहला पॉइंट है। इट सेटिस्फाई बोथ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल टेस्ट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल इज ऑफ इंडेक्स नंबर। थर्ड है जियोमेट्रिक मीन, जो इसमें जो मेथड यूज़ की गई वो जियोमेट्रिक मीन है। अंडर रूट में 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वही जियोमेट्रिक मीन होता है। सो थर्ड पॉइंट इज द जियोमेट्रिक मीन इज यूज टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर विच इज द बेस्ट एवरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। एंड लास्ट वन इज द इट बैलेंस द डिमेरिट्स ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शेस इंडेक्स नंबर। तो ये 4 पॉइंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये थियरेटिकल क्वेश्चन। ओके, देन नंबर 32 राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वैसे इसमें 7 पॉइंट्स है बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो 4 to 5 पॉइंट्स स्पेस में इनफ रहते हैं, मतलब उनके 4 to 5 पॉइंट्स लिखते हैं तो भी इनके पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। ओके, क्विकली वो 7 पॉइंट देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर लाइज इन द इंटरवल -1 to 1। सेकेंड, फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। थर्ड, XY का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करें या YX का फाइंड करें, दोनों सेम ही आते हैं। नंबर 4 इज R डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, क्योंकि दोनों से ही इंडिपेंडेंट है। आप कुछ भी माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, R की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आती। फिफ्थ पॉइंट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज एन एब्सोल्यूट मेजर, मतलब उनका यूनिट नहीं होता। नंबर 6, इफ द साइन ऑफ एनी वन ऑफ द 2 वेरिएबल इज चेंज देन द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑल्सो चेंज। कोई भी एक वेरिएबल की साइन बदली जाएगी तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर है उनकी भी साइन चेंज होती है। और लास्ट पॉइंट, इफ द साइन ऑफ बोथ द वेरिएबल आर चेंज देन द साइन ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स अनचेंज। क्योंकि दोनों की साइन चेंज होगी तो फिर उसकी इफेक्ट नहीं आती है। ओके, देन नंबर 33 जहाँ पे b की वैल्यू 1, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सेक्शन सी में। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 ही पूछे गए, उसमें से एक ये। b की वैल्यू दी है 1.5, r दिया है 0.8। स्टैंडर्ड डेविएशन x का, जिनको हम sx से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया गया है 1.6। और जो हमें पूछा गया है इसमें वो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। सो सिंपली इसमें b का एक जनरली फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, b इज इक्वल टू r sy/sx। इसमें b की जगह पे 1.5, r की जगह पे 0.8, sy एज इट इज़ 1.6, sx की जगह पे पुट करेंगे। यहाँ से 0.8 और 1.6 दोनों को हम सामने की साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके इजीली हमें sy मिल जाएगा। डेट मीन्स सामने जो है वो 1.5 है
इस साइड से हम 1.6 जो डिवाइड में है उनको सामने भेजेंगे तो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, और 0.8 जो हमें इस स्टेप में न्यूमरेटर में दिखाई दे रहे उनको सामने भेजेंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। कैलसी में इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमें SY का आंसर मिल जाएगा, डेट इज़ 3। ओके, एक ईजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये। देन 34 अगेन एक थियरेटिकल क्वेश्चन, स्टेट द मेरिट ऑफ मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। 2 मेरिट्स हैं इनके। उसमें सबसे पहला, द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कॉम्पोनेंट इज एलिमिनेटेड टू अ लार्ज कंटेंट एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑफ द टाइम सीरीज आर ऑब्टेन्ड। सेकेंड है, इन दिस मेथड द कैलकुलेशन टू फाइंड ट्रेंड इज ईजी एंड इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, 2 पॉइंट लिखने हैं और यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि 2 ही इसमें पॉइंट है ओवरऑल। ओके, नेक्स्ट है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें 4 पॉइंट है। फटाफट ले देख लेते हैं, ये भी एक थियरेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज, it can be repeated under identical condition. Second, its all possible outcomes are known. Third, it cannot be predicted with certainty, without outcome will appear. And fourth one, it result into a certain outcome. ये 4 पॉइंट लिखने रहेंगे। ओके, देन जो 36 है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड चैप्टर का। The probability of success is double the probability of failure and n is equals to 4, then find the variance of द डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो है NP/Q, जिसमें से n हमें दिया गया है 4 और दिया गया है कि P इज इक्वल टू 2Q। और एक चीज़ हमें और पता होती है कि P प्लस Q का एडिशन होता है 1, तो P की जगह पे इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2Q, तो 2Q प्लस Q 3Q इज इक्वल टू 1। 3 को सामने भेज दे तो Q मिल जाएगा 1/3, और जैसे ही Q मिलता है P का फॉर्मूला है 1 माइनस Q, 1 माइनस 1/3 2/3, और फिर ये तीनों ही वैल्यू हमें पुट करनी होगी वेरिएंस के फॉर्मूला में, n मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q। सो 4 मल्टीप्लाई P की वैल्यू अभी हमें मिली है 2/3, Q की वैल्यू उससे पहले फाइंड हुई थी 1/3। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में 4 × 2 8 और डिनोमिनेटर में 3 × 3 9। ओके, सो डेट इज़ द फाइनल आंसर 8/9। 37 एक वापस डेफिनेशन टाइप पूछा गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। ये जो क्वेश्चन है वो लिमिट चैप्टर में से है। आंसर इज, व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज ब्राउट नियर अबाउट टू a by increasing or decreasing the value, then it can be said that x tends to a, it is denoted by x tends to a। और मतलब इसका मीनिंग क्या है कि दोनों ही ओर से हमें a के करीब वैल्यू ले जानी, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, इंक्रीज करके और डिक्रीज करके। ये डायग्राम वहाँ पे शो कर देंगे हम, जो टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन में दिया हुआ है। ओके, ये है मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, डिफाइन एन ओपन इंटरवल, वो भी एक लिमिट चैप्टर का ही थियरेटिकल क्वेश्चन। इफ a b belongs to R and a is less than b, then the set of all real numbers between a and b not including a and b is called an open interval। और वहाँ पे जो सिम्बोलिकली हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, a, b इज इक्वल टू x वेयर x लाइज बिटवीन a to b, x बिलोंग्स टू R। मतलब ओपन इंटरवल का जनरली मीनिंग क्या है कि जो भी इंटरवल दिया गया हो, फॉर एग्जांपल 2 to 4, सो 2 से लेके 4 तक की कोई भी वैल्यू हम x के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट 2 और 4 एंड वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी है। शॉर्ट में ओपन इंटरवल का यही मीनिंग है। और इस सेक्शन में लास्ट एक जो थियरेटिकल क्वेश्चन था वो था, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So definition is, the ratio of percentage change in demand and the percentage change in price is called elasticity of demand। फॉर्मूला भी यही है, माइनस के साइन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, और 2 पॉइंट और लिखे जाएंगे, इनका एक फॉर्मूला प्रॉपर लिखा जाएगा। द डिमांड ऑफ एन आइटम x इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस p, फॉर्मूला है -p/x dx/dp। और इनके बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में नेगेटिव साइन लगाई जाती है। ओके, फिर सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, राइट। और इसमें टोटली हमें 8 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ओके, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें हालांकि जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ही लिख दी है। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 40। द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑब्टेन फॉर फूड आइटम्स फ्रॉम द ईयर 2008-9 to 2015-16 are as follow, compute the fixed base index number।
ओके, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मतलब जो यूज़ होगा वो कन्वर्जन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, जो दिया है वो चेन बेस है, हमें उसमें से फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चेन बेस टू फिक्स बेस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें न्यूमरेटर में जो करंट ईयर है उसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई प्रीसीडिंग, मतलब जो करंट ईयर है मतलब जो प्रीसीडिंग ईयर है उनका फिक्स बेस यूज़ करना है, डिवाइड बाय 100। और इसमें हर बार हम जो पहली वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, मतलब यहाँ पे बेस ईयर हमें दिया हुआ है 2007-8, इसमें जो पहली वैल्यू कंसिडर करते हैं वो कौन सी करते हैं, जो एज इट इज़ सामने चेन बेस में दी हुई होती है। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमें सेम टू सेम पुट कर देनी है। उसके बाद की कैलकुलेशन क्या है, यदि मैं 2009-10 की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे करंट ईयर का चेन बेस, ये जो पूरी कॉलम है वो चेन बेस की है, और यहाँ पे जो न्यू कॉलम बनती जाएगी वो फिक्स बेस की है। तो 2009-10 की बात करूँ तो मुझे एक तो क्या लेना है 115.28 और मल्टीप्लाई जो प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस था जो 134.8 था डिवाइडेड बाय 100, और इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा 155.40। और सिमिलरली कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। मीन्स 2010-11 की बात करें तो इसमें करंट की जो वैल्यू है वो है 115.57, तो न्यूमरेटर में एक तो वो आएगी, साथ में मल्टीप्लाई में प्रीसीडिंग यानी प्रीवियस वाली जो फिक्स बेस अभी हमने कैलकुलेट की 155.40 वो मल्टीप्लाई में होगी, और डिवाइड बाय 100 जो कि फॉर्मूला बाय फॉर्मूला फिक्स है। ओके, सो ऑन ये कैलकुलेशन आगे बढ़ा जाएंगे और ये पूरा टेबल बनता जाएगा। ओके, आप आराम से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। हाँ, इस केस में एक चीज़ ध्यान रखने जैसे, बीच में कहीं पे भी थोड़ी सी भी गलती हुई फिक्स पेज में तो आगे के सारे आंसर रॉन्ग जा सकते, इसलिए बहुत ही केयरफुल से इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट 41 जो है, इफ़ द इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स आर 250%, 265% एंड 300% रिस्पेक्टिवली, और इम्पोर्टेंस का रेशियो दिया है 8:7:5, फाइंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हमें जो ऊपर परसेंटेज दिए हुए वहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने परसेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इंक्रीज़ किस में होंगे, बेस में, और बेस कितना होता है 100। सो तीनों मतलब 3 वैल्यू दी है तो हमने आइटम लिख दी है ए बी सी, और 100 में तीनों ही प्लस कर देंगे और यही हमें मिलता है इंडेक्स नंबर आई। और जो इम्पोर्टेंस दी गई उनको हम देते हैं वेटेज डब्ल्यू 875। सो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है इनका, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। सो यहाँ पे आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक कॉलम हम वो बना रहे हैं, यहाँ पे आई 350 मल्टीप्लाई 8 2800, सिमिलरली 365 मल्टीप्लाई 7 2555, और वैसे ही 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे 2000, और इनका टोटल लगा देंगे, उसी को ही बोला जाता है सिग्मा आई डब्ल्यू, और डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का जो टोटल है वो लगाया जाएगा, डेट इज़ 20। दोनों को यहाँ पर डिवाइड में रख दे, आंसर मिल जाता है 367.75। और एक इंटरप्रिटेशन लिखा जाएगा कि ये जो आंसर आया है उसमें से -100 करेंगे तो उतने परसेंटेज प्राइस इंक्रीज़ हुई है, यानी कि -100 करें सो 267.75% इन द प्राइस इन द करंट ईयर एज कम्पेयर टू बेस ईयर। ओके, ये भी एक ईजी क्वेश्चन था। दैन नंबर 42, वहाँ पे हालांकि टेक्स्ट बुक में जो इल्यूस्ट्रेशन दिया है उसमें सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स और डांसिंग स्किल लिखा था, आपके पेपर में जो दिया गया उसमें मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन सेम है, और रैंक को रिलेशन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले ये जो मार्क्स दिए गए, एक को x और एक को हम y दे देंगे, और बाजू में उसके रैंक RX कैसे लिखे जाते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे इसका मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी जो पेपर में था वो मैथ्स था, सबसे ज़्यादा मार्क्स है 60, उनको रैंक 1 दिया गया है। उसके बाद 50 दिखाई दे रहे हैं, उनको रैंक 2 दिया गया है। फिर 40 को 3 एंड सो ऑन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे रैंक दिए गए हैं। ओके, क्योंकि रैंक कोरिलेशन की जो मेथड है उसमें हम जो भी रैंक देते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हमें फॉलो करना है। फिर y में भी यहाँ पे y लिखा है, फिर रैंक ऑफ y सिमिलर सेम केस, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है 80 उसको 1 दिया जाएगा। फिर नंबर 60 है उसको सेकंड रैंक, फिर उससे छोटी वैल्यू देखें तो 40 है जिसको थर्ड रैंक, उससे छोटी वैल्यू 28 है जिसको फोर्थ रैंक, उससे छोटी वैल्यू जब हम देखेंगे तो हमें 20 दो बार दिखाई दे रहा है, राइट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी ये टाई वाले मेथड है। तो यहाँ पे क्या सोचा जाता है कि 4 तक के रैंक हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इन दोनों नंबर को जो रैंक मिलने वाला था वो 5 और 6 होने वाला था, बट क्योंकि दोनों सेम है तो 5 और 6 की एवरेज दोनों को दी जाती है।
डेट मीन्स 5 + 6 एवरेज कैसे फाइंड होती है, जो रैंक हम देने वाले थे 5 और 6 दोनों का एडिशन 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5, तो दोनों को सेम दे दिया जाएगा 5.5 5.5। और जो नेक्स्ट रैंकिंग दी जाएगी वो अब डायरेक्ट अब कहाँ से दी जाएगी, 7 से, क्योंकि हम ऐसा मान देते कि 5 और 6 दोनों ही हम रैंक दे चुके हैं वैसा, क्योंकि दोनों इक्वल थे इसलिए एवरेज रैंक दिए गए। बट अब जो नेक्स्ट रैंकिंग दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी, 7। ओके, देन नेक्स्ट कॉलम है D इज इक्वल टू RX माइनस RY, दोनों कॉलम यहाँ पे रेडी है। जस्ट हमें आगे की कॉलम RX में से RY माइनस करने हैं और पीछे उसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में जो सिग्मा D स्क्वायर है वहाँ पे हमें D स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये D स्क्वायर की कैलकुलेशन और उसका टोटल हमें चाहिए रहेगा। बट उससे पहले एक चीज़ और, जो हम D की कॉलम फाइंड करें उनका टोटल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उनका ज़ीरो आना ज़रूरी है। यदि वो ज़ीरो नहीं आए तो मान लीजिए कहीं पे कैलकुलेशन एरर है, क्योंकि वो ज़ीरो आता ही है, डेट इज़ फिक्स। यदि कैलकुलेशन सही होगी तो वो ज़ीरो आएगा ही। ओके, और एक और चीज़, जब हम टाई मेथड मतलब जहाँ पे भी कुछ नंबर्स हमें सेम दिखाई देते हैं वहाँ पे हमें ये CF की कैलकुलेशन, करेक्शन फैक्टर की कैलकुलेशन की जाती। तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए, तो एक इसमें 30 है जो RX में दिखाई दिया था, हालांकि वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं गया, हम वापस देखेंगे। ओके, वो जो 30 ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे 1 बार 2 बार और 3 बार दिखाई दे रहा है। ओके, और उससे पहले जो रैंक ऑलरेडी दिए जा चुके हैं वो थे 1 2 और 3। ओके, तो इन तीनों को जो रैंक मिलने वाला था वो था 4 5 और 6, बट क्योंकि तीनों सेम है तो 4 5 6 की एवरेज इस तीनों को दी जाएगी। तो इन तीनों की एवरेज कैसे मिलती है, तो इन तीनों का ही एडिशन, 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3, और इनकी एवरेज क्या आएगी 5, तो तीनों को ही रैंक दिया जाएगा 5 5 5। और CF की कैलकुलेशन में भी हम वही दिखाएंगे कि कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ, 30 और 20। 30 कितनी बार आया, 3 टाइम, 20 कितनी बार आया, 2। इसी को ही दिया जाता है M, और CF का एक फॉर्मूला है m³ - m/12, जहाँ पे 30 के सामने 3 है तो M की जगह पे 3 पुट करके कैलकुलेशन करेंगे 2 आएगा, और M की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 0.5, इनका टोटल 2.5। और जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 - 6, यहाँ पे ध्यान रहे ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF, यानी पहले एडिशन हो जाएगा, लास्ट में मल्टीप्लाई 6 करना है, डिवाइड में है n, इन ब्रैकेट n² - 1, सभी की ही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और आंसर यहाँ पे आ रहा है 0। और एक इंटरप्रिटेशन लिख देंगे कि 0 का मतलब क्या है। It can be said that there is a lack of linear correlation between the rank of marks in both the subject, that means performance of the students of given group in the subject। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था वो था मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, राइट। सो दोनों ही कैसे है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि लीनियर रिलेशन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर क्या आया है, 0। ओके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक में है, सो आई होप सबने प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, रेनफॉल दिया है कि डिटेल्स यहाँ पे दीजिए, जहाँ पे x और y की एवरेज यानी होता है मीन, राइट। सो x बार और y बार 30 एंड 500 दिया। वेरिएंस यानी क्या लिखा जाता है, s² x का हो तो s², y हो तो sy²। और एक और चीज़ r दिया गया है 0.8, और एस्टिमेशन पूछा गया है कि जब प्राइस 40 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन लाइन सबसे पहले फाइंड करते हैं, y³ इज इक्वल टू a + bx, और लास्ट में वहाँ पे x की वैल्यू पुट करके वो एस्टिमेशन ख़त्म करते हैं। तो उससे पहले हमें a और b की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए b का एक फॉर्मूला है, b इज इक्वल टू r sy/sx। बट क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के स्क्वायर दिए तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ले जाएंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो फटाफट b फाइंड हो जाएगा। a का फॉर्मूला है y बार माइनस b x बार y बार दोनों क्वेश्चन में दिए, b अभी फाइंड हो गया, a भी फटाफट फाइंड हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट कर दो a + bx। जैसे ही पुट करते हैं तो लास्ट स्टेप क्या है, जो एस्टिमेशन करना है कि x की वैल्यू हम यहाँ पे 40 पुट करेंगे, तो y का आंसर हमें कितना मिल रहा है, 660। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, शॉर्ट भी था। देन नेक्स्ट नंबर 44, उसमें n दिया है, x बार दिया है, y बार दिया है, sx दिया है, कोवेरियंस दिया है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन इसमें पूछी गई। अगेन फॉर्मूला सेम है, y³ इज इक्वल टू a + bx, बट यहाँ पे b का फॉर्मूला चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि b के काफ़ी सारे फॉर्मूला है,
क्वेश्चन में जिस टाइप की डिटेल दी गई हो उसी टाइप का फॉर्मूला हम बी में यूज़ करते हैं। यदि कोवेरियंस दिया है तो बी का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर। इस बार एस एक्स दिया है तो स्क्वायर करके पुट करना होगा। जैसे ही पुट करेंगे बी मिलेगा, एक्स बार वाई बार दोनों दिए हैं, ए का फॉर्मूला पुट करो वाई बार माइनस बी एक्स बार। जैसे ही ए मिलता है रिग्रेशन लाइन में ए और बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। जब भी लाइन फाइंड करनी हो तो वाई कैप और एक्स एज इट इज़ रहते हैं, सिर्फ एक ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और आंसर है 75 प्लस 2.5x। ये भी एक ईजी सा क्वेश्चन था। ओके, फिर टाइम सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स दिए। एन इज इक्वल टू 4, समेशन ऑफ वाई दिया है 270, सिग्मा टी वाई 734। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो वो है सिग्मा टी एंड सिग्मा टी स्क्वायर। बट एक चीज़ आपको दी है कि ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4, तो आपको ये पता ही होगा कि टी की वैल्यू भी क्या आएगी, कॉन्सिक्यूटिवली आती है हर बार 1 2 3 4। तो सिग्मा टी इनका एडिशन कर दो 10 और इसी का ही स्क्वायर कर दो। सो टी स्क्वायर 1 4 9 16, इनका जो टोटल आएगा वो आ रहा है 30। तो सिग्मा टी और सिग्मा टी स्क्वायर वो आपको खुद को ढूंढने होंगे जो क्वेश्चन में दिया नहीं है। ओके, बाकी सारी डिटेल्स गिवन है। तो फिर बी का फॉर्मूला जो हम टाइम सीरीज में यूज़ करते हैं, बी इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन फटाफट से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 11.8। देन फिर ए का फॉर्मूला जैसा चैप्टर नंबर 3 में है वैसा ही टाइम सीरीज में भी है। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। टी बार कैसे फाइंड होगा, सिग्मा टी बाई एन। सिग्मा टी अभी हमने फाइंड किया था और एन क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाई बार में भी सिग्मा वाई बाई एन, और दोनों की मतलब वाई बार बी और टी बार की वैल्यू पुट करेंगे, ए फाइंड हो जाएगा 38। और इसमें भी हमें पूछा क्या था, तो लिनियर इक्वेशन ही पूछा है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। वाई के इज इक्वल टू 38 प्लस 11.83 इसका फाइनल आंसर है। ओके, ज़्यादा कैलकुलेशन में मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम जल्दी में सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके आगे के जो पेपर्स बाकी उसके लिए ज़्यादा टाइम ना बिगड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर। हालांकि इस क्वेश्चन में मेथड पूरी फॉलो की जाती है, बाकी शॉर्ट में हमें इनका आंसर पता होना चाहिए कि अगस्त जो मंथ है उसमें टोटल डेज कितने होते हैं 31, और 5 ट्यूसडे के लिए पूछा है तो पहले हमें 4 वीक कंप्लीट करने होते और जिसके लिए कितने डेज लगते हैं 28। 31 डेज का मंथ है और 28 डेज, तो 4 वीक कंप्लीट करने में जाएंगे। तो एक्स्ट्रा डेज हमारे पास कितने बचने वाले 3। सो इसका आंसर सीधा सीधा आता है 3/7, क्योंकि जितने भी वो एक्स्ट्रा डेज रिमेनिंग डेज बचते हैं उसको डिवाइड बाय 7 ही हर बार इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आता है। बट मेथड फॉलो की जाती है तो हमें क्या करना है, वो 3-3 की पेयर बनानी है, जितनी भी पॉसिबल पेयर हो वो। तो इसमें आप देखोगे टोटल जो 3-3 की पेयर बनेगी वो 7 बनेगी, उसमें ट्यूसडे आपको 3 बार दिखने वाला है और फाइनल आंसर आ जाएगा 3/7। ओके, वो आप आराम से देख लीजिएगा, अभी हम थोड़ा शॉर्ट में देख रहे हैं। ओके, एक प्रोबेबिलिटी का इजी क्वेश्चन यदि पता चल जाए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है इसमें। पोटैटो की प्राइस इंक्रीज हो, जिनको हम इवेंट ए दे तो प्रोबेबिलिटी ए के लिए दी है 0.8, वही ऑनियन के लिए दी है 0.7, जिनको हम बी दे देंगे। फिर क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ बोथ पोटैटो एंड ऑनियन। एंड जब भी दिखाई दे तो ये इंटरसेक्शन दिखाता है, यानी कि ये दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। ए इंटरसेक्शन बी है 0.6। और पूछा क्या है, ये एक खास वर्ड है, कभी भी ऐसा लिखा है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का एक ही मीनिंग होता है, यूनियन पूछा जा रहा है और 2 ही इवेंट दी है, तो 2 इवेंट के लिए जो यूनियन का फॉर्मूला है वही फटाफट अप्लाई कर दो। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तीनों की वैल्यू दी है, कैल से यूज़ करो, फटाफट आंसर पाओ। ओके, एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक टेबल टाइप दिया है और कंडीशनल में ये दिया गया है, इफ़ वोटर इज़ अ मेल, यदि मेल हो, वो कंडीशन हो, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। ओके, यानी जो कंडीशन है वो डिनोमिनेटर में रहती है। ओके, उनको अभी हम दे रहे इवेंट ए। सो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि उसमें मेल हो उसको हम ए लिखें और सपोर्टर ऑफ पार्टी ए हो उसको हम बी दे, तो इन शॉर्ट ये पूछा जा रहा है B/A। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में आएगा PA। ओके, तो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, बी की फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी, ए में देखना है मेल, तो मेल का टोटल चाहिए रहेगा।
तो इन दोनों का आप टोटल कर दो, वो टोटल मेल है। ओके, वो आपका न्यूमरेटर आएगा जो आ रहा है 2536। सेकेंड डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में हमें इन सबका ही टोटल, क्योंकि हम टोटल पॉसिबिलिटी को ही डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इन चारों का टोटल कर दे तो आ रहा है 4979, यानी ए के लिए प्रोबेबिलिटी मिल गई। फिर बी में क्या है, पार्टी ए, तो पार्टी ए में ये दोनों है, तो इन दोनों नंबर का आप एडिशन कर दो, न्यूमरेटर होगा, और अगेन चारों का जो एडिशन है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी बी की मिल जाएगी। ओके, तो पी एंड पी भी दोनों डन। फिर इंटरसेक्शन पे पहुँचते। अब इंटरसेक्शन यानी क्या कि पार्टी मतलब मेल भी होना चाहिए और सपोर्टर ए का भी, तो दोनों एक साथ हो, ऐसा तो एक ही नंबर है 1319, उनके डिवाइड में चारों का टोटल जो भी हमने किया था, तो वो आ जाएगी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब 2 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें जो पहला है जिसमें ए कंडीशन है इसलिए बी बाय ए बनता है, उनका फॉर्मूला है, मतलब ऊपर क्या आता है तो दोनों का इंटरसेक्शन, और डिनोमिनेटर में वही आता है जो कंडीशन हो, मतलब पहले क्वेश्चन में ए कंडीशन है तो डिवाइड बाय ए, दोनों ही हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल, और फटाफट ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है उससे उल्टा है, इसमें बी है ओ कंडीशन है। ओके, तो क्वेश्चन रहेगा पी ए बाई बी, और डिवाइड में जो आएगा वो बी। न्यूमरेटर में तो हर बार दोनों का इंटरसेक्शन ही होता है, वो सेम रहेगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कट, और ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1319 डिवाइडेड बाई 2437। ये भी एक इजी क्वेश्चन ही है 3 मार्क्स के लिए। फिर बाइनोमियल में से क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड शो डैट P2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स P ऑफ -2। सबसे पहला काम है सी फाइंड करना। सी के लिए फटाफट क्या करना है, ये 3 वैल्यू है तो 3 प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और तीनों का ही एडिशन ऑलवेज कितना होना चाहिए 1, वहाँ से सी मिलने वाला है। तो सबसे पहले -2 इसमें पुट करते हैं, तो P ऑफ -2, सो x की जगह आप -2 पुट कर दो तो आंसर आ रहा है 2C। फिर x की जगह पे 1 पुट कर दो, 2 अगेन 2C आ रहा है, 2 पुट करें तो 6C आ रहा है। तीनों आंसर आ गए प्रोबेबिलिटी के, इन तीनों का एडिशन कितना होता है 1। सो यहाँ पे जो आंसर है वो पुट कर दो, तो 10C इज इक्वल टू 1, C मिल जाएगा 1/10। पहला काम खत्म हुआ कि C फाइंड हो गया। अब जो शो करना है वहाँ पे पहुँचते हैं, तो P2 का आंसर फाइंड करो। P2 हमें मिला था 6C, C की वैल्यू इसमें पुट करो, P2 आ रहा है 3/5। फिर आप 3 टाइम्स P ऑफ -2 फाइंड करो, वो भी सेम आएगा, और वहाँ से शो कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है। मतलब मेन काम है वो C फाइंड करना है, एक बार वो मिल गया तो इजीली आगे आप शो कर सकते हो। और फिर प्रॉपर्टी जो काफ़ी IMP थियरी है इस चैप्टर की, वो भी पूछी गई थी 3 मार्क्स में। सबसे पहला तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, फिर इसके पैरामीटर्स N एंड P, 2 फॉर्मूला लिखने हैं, मीन का NP, स्टैंडर्ड डेविएशन √NPQ, वेरिएंस NPQ, और Q का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस बाय मीन, और मीन जो होता है वेरिएंस से ऑलवेज ज़्यादा। फिर 3 स्क्यूनेस के लिए पॉइंट्स है कि इज इक्वल टू 1/2 हो P तो सिमेट्रिक, P का आंसर 1/2 से कम तो पॉजिटिव, और 1/2 से ज़्यादा तो नेगेटिव। ये 8 पॉइंट लिखने हैं 3 मार्क्स के लिए। और इस सेक्शन में जो आखिरी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, वो भी एक इजी क्वेश्चन ये बता रहा है कि f'(x) और f'(x) सेम कब होंगे। तो अब फटाफट पहले f'(x) और f'(x) फाइंड कर लो। f'(x) यानी पहला डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी 6, एक पावर कम होगी यानी 6x, 4x लिखा है, वहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x गायब हो जाएगा यानी 4, और लास्ट में जो +5 है कांस्टेंट का होता है 0, तो वो यहाँ से गायब, तो आंसर आएगा 6x + 4। इसका वापस दूसरा डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन 6x, अगेन x है वो गायब हो जाएगा, 6 आएगा, और +4 कांस्टेंट है उनका 0 यानी 6। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही कि f'(x) और f'(x) को सामने रख दो। ओके, आमने सामने रख दो, 4 सामने भेज दो, 6 - 4 2, फिर 6 को सामने भेजो, फटाफट आपको x मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो आपका सेक्शन डी जो है वो भी यहाँ पे और होता है। अब सेक्शन ई, काफ़ी लोगों का मानना है सेक्शन ई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, इसीलिए लोग मानते हैं क्योंकि पार्ट 2 में से ही पूरा होता है, बट है ये पूरा टेक्स्ट बुक बेस ही, जिसमें 2 क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, एक लिमिट का और एक डिफरेंशिएशन का। ओके, तो फटाफट देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। 200 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम 100 मार्क्स की एग्जाम है, मीन मार्क्स दिए 60, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 8। पहला क्वेश्चन है, इफ 70 और मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल स्कॉलरशिप देन ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
बीइंग गेटिंग स्कॉलरशिप, यानी कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलने वाली है ये पूछा गया है। तो कभी भी नंबर ऑफ पर्सन जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा जाता है तो बेसिक मेथड क्या है कि सबसे पहले आप उनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो, उसको मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दो, तो आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब जो रिक्वायर्ड पर्सन चाहिए वो मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी ये सीधा क्वेश्चन है। किसके लिए पूछा गया है? तो 70 और मोर मार्क्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। और x बेसिकली क्या होता है, वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन फॉलो कर रहा है, तो मार्क्स, और मार्क्स कितने दिए गए, तो 70 और मोर चाहिए। इट मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अब दोनों साइड पे आप x माइनस म्यू बाई सिग्मा कर दो ताकि हम इसको z में कन्वर्ट कर पाए। और म्यू यानी मीन दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन बी क्वेश्चन में दिया है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.25। ओके, अब 1.25 पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड पे दिखाई देगी। उससे आगे देखना है, कहाँ तक वो नहीं दिया है तो इन्फिनिटी तक पहुँच जाना है, यानी ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा। 1.25 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक आगे बढ़ना है। ओके, बट हमें जो टेबल का जब हम यूज़ करते हैं तब बेसिकली जो भी z की वैल्यू है वो 0 के साथ रिलेट होनी ज़रूरी है। तो इस पोर्शन को हम 0 के साथ कैसे रिलेट करेंगे, तो क्या करते हैं कि पूरा हम पोर्शन यूज़ कर लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे पहली लाइन जो लिखी गई है वही 0 टू इन्फिनिटी। अब उसमें से जो पोर्शन हमें यूज़ नहीं करना है यानी ब्लैंक है वो माइनस कर देते हैं। और वो पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, सो 0 से 1.25 तक का। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, आप दोनों ही प्रोबेबिलिटी में देखोगे तो एक एक नंबर आपको 0 मिल गया। और जब हमें एक नंबर 0 मिलता है तभी हम उस टेबल के आंसर का यूज़ कर सकते हैं, ये कंडीशन है। ओके, तो जो पोर्शन यहाँ पे था उनको हमने दो टुकड़ों में बांट दिया है, एक 0 टू इन्फिनिटी पूरा, और दूसरा जो पोर्शन यूज़ नहीं हो रहा था 0 से 1.25। अब 0 से इन्फिनिटी हमें पता है 0.5 और 1.25 वो टेबल में वैल्यू देखनी होगी जिसका आंसर आ रहा है 0.3944, माइनस करें तो 0.1056, और टोटल स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 200। तो मल्टीप्लाई बाय 200 कर दो तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिल जाएंगे। और क्योंकि ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है तो इनको राउंड फिगर करना ज़रूरी है, यानी अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा जाएगा 21। ओके, देन नेक्स्ट, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ द 10% ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क। इस बार परसेंटेज दिए है, परसेंटेज दिए, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी दी है, मार्क्स आपको पूछे जा रहे हैं। अब मार्क्स है वही आपका वही एक्स है, यानी ये उल्टा क्वेश्चन है, आपको एक्स पूछा जा रहा है। बट किसके लिए पूछा जा रहा है, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% ऑफ गेटिंग हाईएस्ट मार्क। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहे हो, ऐसे 10% पीपल, उनके जो मिनिमम है वो फाइंड करना है। अब जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हो वो हमें कौन सी साइड पे मिलते हैं, राइट साइड पे मिलते हैं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ये पूरा ग्राफ अरेंज होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स वाले स्टूडेंट कहाँ पे होंगे, राइट से हमें कितना परसेंट जाना है, 10%। तो उसी साइड पे हम रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि सेंट्रल पोर्शन तक पहुँचने के लिए हमें 50% चाहिए, हमारे पास तो 10 ही है। तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो उसी साइड पे हमारा Z भी ख़त्म होगा, यानी हमारा Z1 है वो कौन सी साइड पे लाई करेगा, राइट साइड पे। ये उल्टा क्वेश्चन है, इस बार प्रोबेबिलिटी हमें पहले से ही पता है कि 0.10 ही है, 10% दिए थे। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होती है, परसेंटेज दिए हो तो डिवाइड बाय 100 करके। ओके, ये पोर्शन को हम 0 के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, अभी हमने ऊपर किया था वैसे ही कि 0 से इन्फिनिटी पूरा यूज़ करो, माइनस 0 टू Z1, क्योंकि इस बार Z1 हमें पता नहीं है। और क्योंकि Z1 ढूंढना है तो हमें यही प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी, कौन सी, 0 टू Z1 वाले, वहीं से ही हमें Z1 मिलेगा। ओके, 0 टू इन्फिनिटी हमें पता है 0.5। ये जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अभी ये नेगेटिव है, इनको सामने भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगी, और सामने से 0.10 राइट साइड पे ले लो तो वो यहाँ पे आके माइनस होंगे और हो जाएंगे 0.4। अब 0.4 है वो हमें वो टेबल में से वैल्यू देखनी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसमें नहीं मिल रही है, तो आसपास की वैल्यू देखें तो इसमें 0.3997 के लिए आंसर है 1.28, 4015 के लिए 1.29, और एवरेज देखें तो 4006। इन तीनों में से ही 0.4 से सबसे ज़्यादा करीब कौन है, वो है 0.3997। ओके, तो उनका ही आंसर हम अप्रोक्सीमेटली यूज़ करने वाले हैं, वो कितना है 1.28। तो Z1 कितना होगा 1.28। और क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो Z1 की जगह पे Z1 का फॉर्मूला यूज़ करो, x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा, म्यू सिग्मा वहाँ पे पता है, दोनों की वैल्यू पुट करो, आमने सामने भेजो, x1 मिल जाएगा, और यही है हमारा आंसर। ओके,
देन नेक्स्ट वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है 53। फॉर ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन एवरेज हाइट यानी मीन दिया है और वेरिएंस दिया है 100, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ दिस पर्सन फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन फॉलो कर रहा है? हाइट। यहाँ से क्या पूछा है? डिटरमाइन द थर्ड क्वार्टाइल एंड 60th परसेंटाइल एंड इंटरप्रेट इट। अब थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3 कितने परसेंटेज पे होता है? 75। Q3 का मतलब ही यही है 75% या उससे कम। ओके, 75% या उससे कम। सॉरी, क्वेश्चन रीड करने में गलती हुई। थर्ड क्वार्टाइल नहीं, थर्ड डेसाइल है। ओके, D3 डेसाइल 10% के पार्ट में डिवाइड होता है। यदि थर्ड डेसाइल है उसका मतलब होता है 30% या उससे कम। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखोगे आप, x लेस देन और इक्वल टू D3। क्यों? क्योंकि डेसाइल का मतलब ही यही है 30% या उससे कम, तो वो लेस देन की साइन रहेगी। और डेसाइल परसेंटाइल जब भी फाइंड करने हो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको x फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि डेसाइल का खुद का ही मतलब एक परसेंटेज है और परसेंटेज क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो उल्टे क्वेश्चन है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको पता है, आपको क्या ढूंढना है? x यानी D3 की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे 30% कम हो। वैसे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं डेसाइल में। ओके, दोनों ही केस में वो थर्ड डेसाइल हो या परसेंटाइल हो, दोनों में ही हमें x फाइंड करना है यानी D3 फाइंड करना है। ओके, इनको आप मतलब एज अ जैसे हम x फाइंड करते हैं बाकी के क्वेश्चन में, वैसा ही काउंट करो। थर्ड डेसाइल 30% यानी 30/100, प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0.30। ओके, दोनों साइड पे माइनस म्यू बाई सिग्मा करेंगे तो z तक पहुंच जाएंगे। और ये उल्टा क्वेश्चन है, ध्यान रहे। जब भी परसेंटाइल डेसाइल क्वेश्चन है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक मतलब ही है कि लेस देन से स्टार्ट होता है। ओके, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना ज़रूरी। थर्ड डेसाइल यानी 30%, यानी हम 50% वाली बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड पे ही हमारा पूरा पोर्शन आ जाएगा। मतलब ये पोर्शन हमें राइट तक खींचना नहीं है। क्यों? क्योंकि 30% ही है। 30% 50% से कम है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना ज़रूरी था, तो वहाँ पे ही ख़त्म भी होगा। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है कि यदि हमारा Z1 लेफ़्ट पे है तो जब हम लास्ट में आंसर लिखेंगे तब हमें वहाँ पे नेगेटिव आंसर कंसिडर करना है। और यहाँ पे सेम वे से अब हम ज़ीरो के साथ कैसे कंपैरिजन में लाए, तो पूरा पोर्शन यूज़ कर लो, -∞ to 0, उसमें से ब्लैंक पोर्शन जो है Z1 to 0 वो हटा दो। प्रोबेबिलिटी पहले से ही पता थी 0.3, इन्फिनिटी टू 0 वो होता है 0.5। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना होगा? Z1 से 0, क्योंकि वही हमें Z1 दे सकता है। ओके, तो उनको प्लस करने के लिए लेफ्ट पे भेजो, 0.3 को राइट पे ले लो, तो माइनस करके आ रहा है 0.2। अब ये आंसर कहाँ से देखना है? पीछे से, वहीं से हमें Z मिलेगा। वापस वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही तो आसपास की वैल्यू की एवरेज लेनी है। और इस बार एवरेज किसके नियर अबाउट जा रही है? 2002, और उसका आंसर क्या है? 0.525, तो वो Z1 हो जाएगा। बट क्योंकि Z1 लेफ्ट साइड पे था तो आंसर माइनस है। ओके, तो साइन आपको यहाँ पे कौन सी देनी है? माइनस। अब आप Z1 का फॉर्मूला यूज़ करो, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, और उसमें से x ढूंढ लो, वही आपका D3 है। और इसी वे से P60 भी मिलेगा, बट P60 का मतलब होता है 60%। परसेंटाइल एक परसेंटेज पे चलती है, और यहाँ पे भी लेस देन की ही साइन आएगी, क्योंकि कोई भी हो उसका मतलब यही है 60% या उससे कम। तो सेम वे से आप Z1 तक पहुँच जाओ। इस बार भी आपको स्टार्ट लेफ्ट साइड से ही करना है। ओके, परसेंटाइल डेसाइल कुछ भी हो, स्टार्ट लेफ्ट साइड से ही होगा, क्योंकि इसका मतलब ही है लेस देन और इक्वल टू। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, बट इस बार 60%, जो सेंट्रल वैल्यू है वो 50% पे है, उससे भी हमारे परसेंटेज ज़्यादा है। तो जो एरिया हम कवर करेंगे उसका थोड़ा पोर्शन राइट साइड पे भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार 60% है, और 60% 50 से ज़्यादा होता है। ओके, अब इस पोर्शन को हम 0 के साथ कैसे लाएंगे? -∞ to 0। इस बार हम माइनस नहीं बट प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि और भी पोर्शन बाकी रह गया है, और जो है 0 से Z1 तक का। ओके, तो दोनों ऐड करेंगे तब भी पूरा पोर्शन कवर होगा। प्रोबेबिलिटी पहले से ही पता होगी, क्योंकि 60% है, 0.6। इन्फिनिटी टू 0 का आंसर हमें पता होता है 0.5, और 0 to Z1 फाइंड करेंगे, क्योंकि वहीं से ही Z1 मिलेगा। जब उल्टा क्वेश्चन हो और Z1 ढूंढना हो तो ऑलवेज हमें प्रोबेबिलिटी यही चाहिए 0 to Z1 की, जो अभी आ रही है 0.1। वापस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही
तो आप एवरेज लो, एवरेज नियर अबाउट जा रही है 0.255, वो Z1 है, और इस बार Z1 राइट साइड पे है तो पॉजिटिव ही कंसिडर होगा, और x माइनस म्यू बाई सिग्मा कर देंगे, वहाँ से जो x मिलेगा वही है P60। ओके, देन फटाफट लिमिट का क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट वाला क्वेश्चन जब भी हमें मिलता है तो हम रेशनलाइज करते हैं, जहाँ पे भी वो अंडर रूट दिखाई दे। अब न्यूमरेटर में अंडर रूट दिखाई दिया है तो माइनस की साइन है तो प्लस की साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर जो है वो एक बार दोनों के बीच में माइनस की साइन हुई, एक बार प्लस की साइन हुई। एक आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x+7 और पीछे -3 का स्क्वायर 9। नीचे अभी एज इट इज़ रखना है, वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब न्यूमरेटर को आप जैसे ही सिंप्लीफाई करते हो तो x-2 आ जाएगा, और वो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हो। जैसे ही x-2 आपका कैंसिल होगा और रिमेनिंग पार्ट जो ये बचता है, अब आपका डिनोमिनेटर 0 होना बंद हो गया। जैसे डिनोमिनेटर 0 होना बंद हो जाए, x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो 2, सो 7 + 2 9, √9 यानी 3, 3 + 3 डिनोमिनेटर में, आंसर आपको 1/6। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, काफ़ी ईजी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, और जो मोस्ट IMP गिनी जाती है डिफरेंशिएशन में कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन, वही इस बार भी पूछा गया था। ओके, इनकी मेथड क्या है कि आप पहला डिफरेंशिएशन फाइंड करो, उनको = 0 दे दो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, 2 वैल्यू मिल रही है। ओके, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, वहाँ से सेकंड डिफरेंशिएशन फाइंड करो, और बारी बारी ये दोनों वैल्यू सेकंड डिफरेंशिएशन में पुट करनी है। पहला आप x = -2 पुट करो, आंसर नेगेटिव आया, उसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहाँ पे, जो वैल्यू पुट की गई थी वहाँ पे, यानी x = -2 पे। फिर आप 1 पुट कर लो, जैसे आप 1 पुट करते हो इस बार आंसर पॉजिटिव आ रहा है, थियरी कहती है कि पॉजिटिव आए तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कब, x = 1 पे। अब हमें वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी ढूंढनी है, तो जब हमें मिनिमम ढूंढनी है तो हमें x की जगह पे क्या पुट करना होगा, 1, कहाँ पे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में यानी fx में। और मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी हो तो कौन सी पुट करनी होगी, x = -2, fx में पुट करेंगे, दोनों ही आंसर फटाफट मिल जाएंगे। ये भी एक इजी क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ओके, और अब हम आखिरी सेक्शन पे पहुंच रहे हैं, जो हम सबका फेवरेट सेक्शन है, कि ज़्यादातर लोग पार्ट 1 में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ईजीएस्ट सेक्शन रहता है, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। ओके, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल एक्सपेंडिचर का है, और हमें पाशे और फिशर का इंडेक्स नंबर पूछा गया है। इस बार जो ईयर है वो 2014-15, तो 14 है वो बेस ईयर है, 15 है वो करंट ईयर है। अब जो बेस ईयर है उनकी प्राइस क्या लिखी जाएगी, P0। Q0 दिया नहीं है बट एक्सपेंडिचर दिया है, तो फॉर्मूला क्या है Q0 का, एक्सपेंडिचर जो हमें दिया है उनको डिवाइड करना होगा P0 से, तो डिवाइड करने पे हमें Q0 मिल जाएगा। फिर करंट ईयर की प्राइस P1, Q1 नहीं दिया है बट टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर को Q1 से P1 से डिवाइड करेंगे तो Q1 मिल जाएगा। और जैसे ये चारों चार मिलते हैं तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4 चीज़ें इसमें फाइंड करनी पड़ती है, P1Q0, P0Q0, P1Q1, P0Q1। इन सब का मल्टीप्लाई फटाफट कर लो, यहाँ तक पहुँच जाओगे। फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करनी है, दोनों आंसर मिल जाएंगे। ओके, थोड़ा लेंदी बट इजी क्वेश्चन है। 57 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा गया, यानी एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। जैसे आप इसका x बार और y बार फाइंड करते हो तो y बार पॉइंट में आ रहा है, हालांकि थियरी बताती है कि y बार पॉइंट में आए तो uv पे जाना चाहिए, थोड़े से बड़े नंबर हो तो यहाँ पे uv का यूज़ करें तो u = x माइनस, अब क्या माइनस करना है वो आपकी चॉइस है। मेरे सामने जो आंसर लिखा हुआ है वहाँ पे उन्होंने a की वैल्यू 500 ली है, और डिवाइड बाई जो cx यूज़ करते हैं वो 100, क्यों, क्योंकि सभी 100 के मल्टीपल है। फिर y के लिए v है, v = y माइनस समथिंग, कुछ माइनस करना चाहो तो भी ठीक है, ना करना चाहो तो भी आंसर करेक्ट ही आता है। ओके, और कौन सी वैल्यू लेनी है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपका आंसर और मेथड करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे लिया गया y-12, यानी cy का यूज़ नहीं किया है। ओके, अब जो uv के फॉर्म में r का फॉर्मूला है n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाई √n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u ऑल स्क्वायर, और सिमिलरली v के लिए तो 3 चीज़ें आपको चाहिए होगी, uv का मल्टीप्लाई, u स्क्वायर, v स्क्वायर, u का टोटल, v का टोटल, और सारी वैल्यू इसमें पुट करो। और ध्यान रहे इसमें cy/cx नहीं लगाना है क्योंकि ये r का फॉर्मूला है। ओके, फटाफट इसमें वैल्यू पुट करो, r का आंसर आ जाएगा 0.45।
दूसरी बात, यदि किसी ने एक्स वाई वाली मेथड का यूज़ किया है और आंसर करेक्ट है तो भी वो राइट ही दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे मेथड यूज़ करो, कोई भी मेथड यूज़ करो, आंसर करेक्ट होना चाहिए। ओके, इसमें यूवी का यूज़ किया गया है, आपने एक्स वाई से किया हो तो भी ठीक, सी एक्स सी वाई का यूज़ किया हो ना किया हो फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर करेक्ट होना चाहिए। 58, ये भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ही क्वेश्चन है, एक्स और वाई में दिए गए हैं। इसमें एक्स बार वाई बार दोनों ही इंटीजर आ रहे हैं, तो थियरी बताती है कि एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार वाली मेथड यूज़ करनी चाहिए, बट फिर भी आपने कोई भी मेथड यूज़ की हो आंसर तो सेम ही आता है सभी मेथड से। ओके, तो आंसर मेथड करेक्ट होगी तो मार्क्स मिलने ही वाले हैं। और यदि एक्स माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज़ करनी है तो फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक्स माइनस एक्स बार की ज़रूरत है, वाई माइनस वाई बार की ज़रूरत है, दोनों के मल्टीप्लाई की ज़रूरत है, स्क्वायर की ज़रूरत है। ओके, फटाफट एक कॉलम बना लो और वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटिव पार्ट है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने सब कुछ है, वैल्यू है, माइनस करनी है, कैलसी का यूज़ करना है। ओके, जो आप इजीली कर पाओगे, इसलिए मैं उसमें डिटेल में आपको गिन के नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। फिर फटाफट से 59 देख लिया जाए तो वहाँ पे एस्टिमेशन टाइप का क्वेश्चन है, राइट। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, और एक एस्टिमेशन पूछा गया 75,000 के लिए। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू दी है, आप कोई भी मेथड आपको जो भी अच्छे लगे यूज़ करो। यहाँ पे जो यूज़ किया है यूवी का यूज़ किया है, यू और वी सी एक्स सी वाई का यूज़ नहीं किया है। कोई भी वैल्यू हम माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस किया है एक्स माइनस 65 और वी में माइनस किया गया है 55, बट वो अपनी अपनी चॉइस होती है। यू वी फाइंड करो, यू स्क्वायर फाइंड करो, बी का फॉर्मूला है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइडेड बाई एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा वी सिग्मा यू ऑल स्क्वायर, और यहाँ से बी मिलेगा। फिर ए का फॉर्मूला वाई बार माइनस बी एक्स बार वाई बार कैसे मिलेंगे, सिग्मा एक्स बाय एन एक्स बार होगा, सिग्मा वाई बाय एन वाई बार होगा। ए फाइंड कर लो। नेक्स्ट स्टेप है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और फिर जो एस्टिमेशन की वैल्यू पूछी गई है एक्स के लिए वो इसमें पुट करो एक्स की जगह पे, तो आपको वाई के लिए एस्टिमेशन 60.77 मिल जाएगा। हाँ, यूनिट लिखना खास ज़रूरी है ताकि आपके कोई भी मार्क्स कट ना हो पाए। फिर ऐसा ही एस्टिमेशन टाइप क्वेश्चन टाइम सीरीज़ में, हालांकि इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे जो ईयर्स दिए गए टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में वो डिफरेंट थे। आपको जो ईयर्स उसमें दिए गए एक बार देख लेते हैं, वो ईयर 2016 से लेके 2021 के लिए दिए। फिर जो एस्टिमेशन पूछा है वो 2022 और 23 के लिए पूछा है। इसमें 1670 क्वेश्चन सिमिलरली ही सॉल्व होगा, टी की वैल्यू भी सेम आएगी, जस्ट वो खाली ईयर डिफरेंट दिए वही, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ओके, ईयर की हालांकि ज़रूरत पड़ती नहीं है, टी 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिवली, वाई क्वेश्चन में दिया है, टी वाई टी स्क्वायर की ज़रूरत होती है, बी का फॉर्मूला टाइम सीरीज़ के टर्म्स में बी मिल जाएगा, ए वाई बार माइनस बी टी बार, वैल्यू पुट करो, वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी टी में पुट कर दो। अब ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर ईच ईयर, सभी ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन में टी की जगह पे बारी बारी आप 1 2 3 पुट करते जाओ और ये आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। और लास्ट जो मूविंग एवरेज, बहुत सारे लोगों को पसंद होती है मेथड, 4 ईयरली इस बार पूछी गई थी। ओके, तो एक कॉलम ईयर की बनेगी, एक कॉलम टी की बनेगी, एक कॉलम वाई की बनेगी, और फिर 4 ईयरली मूविंग एवरेज, पहली 4 वैल्यू का टोटल। बट ध्यान में रहे सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में ये लिखा हुआ होना चाहिए टोटल चारों का। ओके, फिर नेक्स्ट 4 का एडिशन होता है, नेक्स्ट 4 का एडिशन करो तो भी ठीक, अदरवाइज जो ऑलरेडी एडिशन किया हो उसमें से पहली वैल्यू हटा दो और नीचे से एक वैल्यू आप जोड़ दो, तो भी आपको ये जो नेक्स्ट 2 3 4 नंबर पे है, 2 3 4 5 पे, उन चारों का एडिशन मिल जाता है। सिमिलरली ये प्रोसेस लास्ट तक फॉलो करनी है, तो ये आपको सभी टोटल मिलेंगे। फिर हमें ये जो दो आंसर है उन दोनों का भी टोटल करना है, और वो टोटल कहाँ पे लिखा जाएगा, दोनों के एग्जैक्ट बीच में, यानी ये 3 नंबर है उसके ठीक आप सामने पहुँच जाओगे। ओके, तो फिर आपको दो का एडिशन करना है, और लास्ट में ये जो आंसर्स आए उनको डिवाइड बाई 8। डिवाइड बाई 8 क्यों करना है, क्योंकि 4 ईयर आपने यहाँ पे लिए थे, 4 यहाँ पे भी लिए थे, तो उन दोनों का टोटल करने पे अब आपने टोटल ईयर कितने यूज़ किए, 8, इसीलिए डिवाइड बाई 8 है, गलती से भी डिवाइड बाई 4 ना हो जाए। ओके, ये आखिरी स्टेप, ये आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा जो ये सॉल्यूशन वीडियो है वो ख़त्म होता है। हाँ, काफ़ी जल्दी में मैंने आंसर बताने की कोशिश की है,
हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट रहेगा, आप आराम से कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ओके, आई होप आप सबको ये सॉल्यूशन पसंद हो गया, और फटाफट मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और आगे कोई सॉल्यूशन वीडियो चाहिए उनके लिए कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।